জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী জয় গোপীজন বল্লভ জয় গিরিবরধারী জয় গিরিবরধারী জয় যশোদানন্দন ব্রজজন রঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজজন রঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজজন রঞ্জন যমুনা তীর মন চারি যমুনা তীর মন চারি জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ জয় Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
श्रील प्रभुपाद की समवेत भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामोदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ব্রহ্মার কাজ হেল্প করছে না, ব্রহ্মার কাজ श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ अध्याय अष्टम। ये अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्मोज्य। श्लोक नंबर 28। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पूर्णफलं प्रदिष्टम्। ये लंबाई बोलना पड़ेगा। अच्छा, दानेषु यत् पूर्णफलं प्रदिष्टम् अत्ततीतात् सर्वविदं विदित्तात् योगी परं स्थानम् उपपैति चाद्दम्। लंबा बोलते
বেদেষু যজ্ঞেষু তপসু চৈব দানেষু যৎ পূর্ণ ফলং প্রদিষ্টম ভক্তি তৎ সর্বমিদং বিদিত্তা যোগী পরম স্থাননুপৈতি চাত্তম বেদেষু বেদ পাঠে যজ্ঞেষু যজ্ঞানুষ্ঠানে তপসু তপস্যা চ ও এব অবশ্যই দানেষু দানে যৎ যে পূর্ণ ফলং পূর্ণ ফল প্রবিষ্টম নির্দেশিত হয়েছে অত্যতি অতিক্রম করে তৎসর্বম সেই সমস্ত ইদম এই বিদিত্তা জেনে যোগী যোগী ভক্ত পরম পরম স্থানম স্থান উপৈতি প্রাপ্ত হন চ ও আত্ম আমি বলিয়ে শব্দ ভক্তি যোগে অবলম্বন করলে তুমি কোনো ফলই বঞ্চিত হবে না বেদ পাঠ যজ্ঞ অনুষ্ঠান তপস্যা দান আদি যত প্রকার জ্ঞান ও কর্মের সাধন আছে সেই সমুদয়ের ফল যোগী বা ভক্ত ভক্ত ভক্তি যোগ দ্বারা লাভ করে আদি পরম ধাম প্রাপ্ত হন। তাৎপর্য বড় তাৎপর্য আছেন পড়ি তারপরে এই শ্লোকটি কৃষ্ণ ভাবরামিত ভক্তিযোগের বিশেষ বর্ণনা সমন্বিত সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ের সারমর্ম। শ্রী গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে থেকে বেদ অধ্যয়ন ও তপশ্চর্য অনুশীলন করা অত্যন্ত আবশ্যক। ব্রহ্মচারীকে গুরুগৃহে থেকে অনুগত ভিত্তের মতো গুরুদেবের সেবা করতে হয়। তাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে ভিক্ষা করে এনে গুরুদেবকে অর্পণ করতে হয়। গুরুদেবের আজ্ঞা অনুসারে কেবল সে ভোজন করে। যদি কোনোদিন গুরুদেব তাকে ভোজনে না ডাকেন তাহলে সেই দিন সে উপবাসী থাকে। এইগুলি ব্রহ্মচর্য ব্রতের কয়েকটি বৈদিক সিদ্ধান্ত। 5 বছর আগে 20 বছর পর্যন্ত গুরুর তত্ত্বাবধানে বেদ অধ্যয়ন করার পর ব্রহ্মচারী শিক্ষার্থীর পরম চরিত্রবান মানুষ হতে সক্ষম হন। বেদ অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্য আরাম কেদারায় উপবিষ্ট মনোধর্মীদের মনোরঞ্জন করা নয়, তার উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন করা। এই প্রশিক্ষণের পরে ব্রহ্মচারী গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করে বিবাহ করতে পারে। গৃহস্থ আশ্রমে তাকে নানা রকম যজ্ঞানুষ্ঠান করতে হবে। তাতে তিনি অধিকতর সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে পরমার্থ সাধনের সচেষ্ট। ভগবদ গীতায় বর্ণনা অনুযায়ী দেশ কাল ও পাত্র বিচারে সত্য রজ তম গুণের পার্থক্য নির্ণয় করে যথোপযুক্ত ভাবে দান ধ্যান করাও তার অবশ্য কর্তব্য। তারপর গৃহাশ্রম থেকে নিবৃত্ত হয়ে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন পূর্বক বনবাসী হয়ে বকল ধারণ করে ক্ষৌর কর্ম পরিহার করে তাকে নানা রকম তপস্যায় অনুশীলন করতে হবে। এইভাবে ব্রহ্মচর্য ব্যস্ত বানপ্রস্থ সবশেষে সন্ন্যাস আশ্রমে বিধি বিধান পালন পূর্বক তাকে জীবনের পরম সিদ্ধি স্তরে উন্নীত হতে হবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্বর্গলোকে উন্নীত হয়। তারপর আরো উন্নতি সাধন করার পরে পরব্রহ্ম নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে অথবা বৈকুণ্ঠ লোকে বা কৃষ্ণ লোকে পরম মুক্তি লাভ করে। বৈদিক শাস্ত্রে এই পথে দিক দর্শন দেওয়া হয়েছে। তবে কৃষ্ণ ভাবনামৃতে সৌন্দর্য হলো এই যে কেবল ভগবানকে ভক্তি করার একটি মাত্র সাধনার মাধ্যমে এই সমস্ত আশ্রম এবং বৈদিক কর্মকাণ্ডের সমস্ত আচার অনুষ্ঠান অতিক্রম করা যায়। ইদং বিদিত্তা শব্দ দুটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে ভগবদ গীতা এই অধ্যায়ে
এও সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত উপদেশ বোঝা উচিত। পুঁথিগত বিদ্যা বা জল্পনা কল্পনার মাধ্যমে বোঝাবার চেষ্টা না করে ভক্ত সঙ্গে তার শ্রবণের মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা উচিত। সপ্তম থেকে শুরু করে দ্বাদশ পর্যন্ত অধ্যায়গুলি ভগবত গীতার সারমর্ম। প্রথম 6টি অধ্যায় এবং শেষের 6টি অধ্যায় যেমন মাঝের 6টি অধ্যায়ে আবৃত করে রেখেছে, সেগুলি বিশেষভাবে স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা সুরক্ষিত হয়েছে। যদি কোনো ভাগ্যবান ভক্ত সঙ্গে ভগবত গীতার বিশেষ করে মাঝখানের এই 6টি অধ্যায়ের তত্ত্ব যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তাহলে তার জীবন কি হবে? সমস্ত তপ, দান, যজ্ঞ, ধ্যান, মনোধর্মের আদি ঊর্ধ্বে দিব্য কীর্তির দ্বারা গৌরবান্বিত হয়। কারণ শুধুমাত্র কৃষ্ণ ভাবনার মাধ্যমেই তিনি এই সব রকম কর্মের সুফল অর্জন করতে পারেন। ভগবদ্গীতার প্রতি তার কিছু মাত্র বিশ্বাস আছে, তার কোন কৃষ্ণ ভক্তের কাছ থেকে ভগবত গীতার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কারণ চতুর্থ অধ্যায়ে প্রারম্ভেই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ভগবত গীতার তত্ত্বজ্ঞান কেবল ভক্তরাই উপলব্ধি করতে পারে, অন্য কেউ যথাযথভাবে ভগবত গীতার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না। তাই মনোধর্মীদের কাছ থেকে ভগবত গীতার ব্যাখ্যা না শুনে কোন কৃষ্ণ ভক্তের কাছে তা শোনা উচিত। এটি হচ্ছে শ্রদ্ধার লক্ষণ। কেউ যখন ভক্তের সন্ধান করতে থাকে এবং সৌভাগ্যক্রমে ভক্তের সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হয়, তখনই তার পক্ষে যথাযথভাবে ভগবদ্গীতার ধ্যান ও উপলব্ধি সার্থক প্রচেষ্টার সূচনা হয়। সাধু সঙ্গের প্রভাবে ভগবত সেবার সূচনা হয় এবং সেই সেবার ফলে শ্রীকৃষ্ণ বা ভগবানের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, লীলা, পরিকর আদি সকল বিষয়ে সমস্ত সংশয় সম্পূর্ণরূপে দূর। এভাবে সমস্ত সংশয় দূর হলে অধ্যয়নে মনোনিবেশ হয়। তখন ভগবত গীতার অধ্যয়ন উপভোগ্য হয়, সর্বদা কৃষ্ণ ভাবনায় অনুভূতি স্তর লাভ, আরো উন্নত স্তরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ণ প্রেম অনুরাগের উদয়। এই পরম সিদ্ধি স্তরে ভক্ত চিদাকাশে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ ধাম গোলক বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হন। এখানে তিনি চিন্ময় শাশ্বত আনন্দ লাভ করেন। ইতি পরম তত্ত্ব লাভ বিষয়ক অক্ষর ব্রহ্মযোগ নামক শ্রীমদ্ ভগবত গীতার 8ম অধ্যায়ে भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त। हरे कृष्ण। बहुत बड़ा ये तात्पर्य है। ये श्लोक वेदेषु योगेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पूर्ण फलं प्रविष्टं अत्ताति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चात्र। तो ये भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ योग है। ये भक्ति योग हम सब लोग दान, ध्यान, यज्ञ, तपस्या करते हैं, लेकिन सब कुछ योगेर सर्वश्रेष्ठ जो योग है भक्ति योग। भक्ति योग कहां से आता है? ना आदौ श्रद्धा तो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव और प्रेम। ये भक्ति क्रम, यही क्रम हम धीरे धीरे वन बाय वन स्टेप हम बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब हृदय श्रद्धा रहेगा। श्रद्धा की श्रद्धा भगवत भक्ति प्रति निष्ठा और विश्वास को श्रद्धा बोलता है। निष्ठा ना निष्ठा, विश्वास और संदेह रहित। कोई वस्तु का ऊपर कैसे श्रद्धा होता है? कोई किसी को संदेह नहीं है। ठीक है, SBI लिखा है ना, SBI का आई के ऊपर कोई संदेह है? टाका रखने टाका नहीं देगा, संदेह रहित। और क्या है? विश्वास है। जे हम टाका डिपॉजिट करेंगे, टाका जब जाएंगे हम मिल जाएंगे। इसको बोलता है श्रद्धा। ये श्रद्धा होने से क्या होता है?
श्रद्धा होने से वो खुजेगा कहाँ एसबीआई है, हम आके इधर खुजेंगे, हम एक अकाउंट खोलेंगे। कहाँ एसबीआई, कहाँ एसबीआई, बहुत सारी है, एक्सिस है, आईसीआईसीआई है, बंधन बैंक है, बहुत सारे बैंक, हम एसबीआई खोजे। तो ये भगवत भक्ति करने के लिए जब आपको ऐसे श्रद्धा आएगा, श्रद्धा आने का बाद आप साधु संग खोजेंगे। कहाँ साधु मिलेगा, कहाँ साधु मिलेगा, बहुत सारी संस्था है, बहुत संस्था है, लेकिन आपको अंदर जो क्वेश्चन है, आपको अंदर जो चाहिए है, आपको जानने के लिए जो इच्छा है, एवं कहाँ ये तत्वगत जन्म कर्म चमे दीपंग एवं जो विधि तत्व भगवान जन्म कर्म हम कैसे तत्व उपलब्धि होगा, मालूम होगा, कहाँ जाने से मिलेगा। जैसे हम सब लोग इंजीनियर डॉक्टर पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं, और विदेशीरा इंडिया आता है किस लिए? इंजीनियर डॉक्टर पढ़ने के लिए। किस लिए आता है? भक्ति के साथ, भक्ति के तत्व जानने के लिए आता है। एकमात्र विश्व में एकमात्र कंट्री বা देश है इंडिया, যেটা केवल भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति जानने के लिए सब लोग। और इंडिया आने के आके इधर इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर वकील बैरिस्टर नेता मंत्री ये सब सीखने के लिए नहीं आता। और ऐसे ऐसे कोई कोई अमेरिकन हिमालय जाके साधु संत संग करते, कहा उसका अंदर, क्योंकि ये जड़ जगत में इतना धन दौलत होने का बाद, इतना सुख लाभ होने का बाद सुखी नहीं होता। वो सुख ढूंढने के लिए कहां आता है? इंडिया में आता है। और इंडिया इस सुख का जो रस कौन प्रदान करता है? साधु ही प्रदान करता है। सुख कहां? सुख भोगे सुख नहीं मिलता, सुख कहां मिलता है? त्यागी सुख। अब पहले प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अब पहले बैठ के खा के अच्छा अच्छा सब कुछ ज्यादा ज्यादा लेके खा के आप चला जाएंगे। आपको क्या है ना, ये ठीक नहीं है, ये लवण कम है, ये लंका ज्यादा है, ये अमुक है तो वो है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का बाद थोड़ा बचा, थोड़ा तो उसको भाग में वो मिले, थोड़ा ये वो लेके वो खाता है, लेकिन उसका अंदर आनंद होता है। हम सबको खिला के जो बचा वही उसको, उसका वो लवण नहीं देखता है, नमक नहीं देखता है, वो लौंका नहीं देखता है, मिर्ची नहीं देखता है, वो केवल प्रसाद ही। तो सुख भोगे सुख नहीं होता, सुख कहां मिलता है? त्यागी सुख मिलता है। इसलिए पहले जमाना में जो भगवान श्री कृष्ण बलदेव रामचंद्र 5 बछर उम्र में भेज देता है, कहा? गुरुकुल में शिक्षा, कैसे तपस्या करना है, कैसे योग अभ्यास करना है, कैसे उपवास करना है, कैसे ये जड़ जागतिक वस्तु का संबंध ज्ञान है और गुरु का निर्देश मान के जीवन यापन करता है। कभी कभी ऐसे होता है गुरु उनको नहीं बुलाता है खाने के लिए, उपवास होता है। अगर कभी कभी भगवान कृष्ण बलदेव राजा का संतान है ना, लेकिन घर घर भिक्षा चले जाते हैं, माधुरी नहीं पड़ता है, भिक्षांग दे भिक्षांग दे। ये तो कलयुग में नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। पहले जमाने में ऐसे दारी दारी साधु आता है भिक्षा, लेकिन सामने लिखा रहता है
क्या लिखा होता है? कुकुर हईते सावधान। उसने नहीं देता है, लिख देता है कुकुर हईते सावधान। अभी जमाना में मंदिर बाहर चला गया, कुत्ता बेडरूम में चला गया। ठीक है, तो ऐसे ही एक परिस्थिति। पहले गुरु का निर्देश मान के साधन भजन करता। 25 ईयर्स ओल्ड तब जाके गुरु शिक्षा लाभ करने के बाद गृह आता। गृह आके शादी विवाह। शादी विवाह 25 ईयर्स माने 25 प्लस 25 50 ईयर्स। तब जाके क्या होता है ना, वानप्रस्थ लेगा। वानप्रस्थ मीन्स वने जाके तपस्या करने पड़ता है, कृष्ण भक्ति करने पड़ता है। तो वानप्रस्थेर पर क्या होता है ना, सन्यास ग्रहण। सन्यास ग्रहण माने परिव्राजक। सन्यास मीन्स इतना सुख स्वाच्छंद नहीं मिलता। ये सब मुंडन, ये दाढ़ी माड़ी सब लेके सन्यास परिव्राजक प्रचार करता है। उसके बाद प्रेम लाभ करके भगवत धाम में जाता। भावस्तर का बाद प्रेम स्तर काल बताएंगे एक जे क्रम आदौ श्रद्धा तत साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। और प्रेम का मान स्नेह प्रणय मान स्नेह प्रणय राग अनुराग ये सब बताएंगे। काल जो क्रम, कैसे हम क्रम अनुसार प्रेम स्तर लाभ करेंगे। तो कुछ कुछ समय जैसे परीक्षित महाराज, भगवान ने बहुत कृपा लाभ करने के बाद जीवन लाभ किया। उसके बाद गुरुकुल के बाद क्या हुआ ना, गृहस्थ आश्रम पालन किया। लेकिन कोई भी घटना क्रमे शशाभरा पृथ्वी जो राजा परीक्षित महाराज निर्धीराय, कोई आसक्ति नहीं, कुछ भी नहीं, त्याग करके उसका पुत्र का ऊपर दायित्व तुम लो, तुम संभालो। वो जाके भगवत प्राप्ति के लिए गंगार बारे उपवेशन में बैठ के श्रीमद् भागवत श्रवण करने। तो 50 बच्चों का बाद हम सब लोग का एक गृह त्याग करने वाली संसार उपयुक्त जो पुत्र होता है, पुत्र का हाथ में सब कुछ दायित्व अर्पण करके। आजकल तो वन नहीं है, वन मिलेगा, वन नहीं है। आगे वन में कौन होता है? साधु संत होता है। अभी वन में कौन है ना, बाबा ये वाला है, माओवादी है। अभी वन में वही है। आगे साधु संत होता है। साधु संत कुटिया बना के नदी पार में कुटिया बना के साधन भजन को। लेकिन वन में आप जा नहीं पाएंगे, क्योंकि उधर गुंडा बदमाशेर अड्डा हो गया। और वन तो कौन, अभी जो भी वन है छोटा 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 छोटा। तो पहले ऐसे सिस्टम था, वेद अध्ययन, शास्त्र अध्ययन, ये सब अध्ययन करके एक बड़े शक्तिशाली ज्ञानवान बुद्धिमान होके ये राज्य परिचालना करता है। जब कोई नेता आध्यात्मिक चेतनाय परिपूर्ण होता है तब देश सुंदर भावी परिचालित होता है, क्योंकि उसका अंदर ये शास्त्रीय ज्ञान है, पाप पुण्य का विचार है, भालो और खराब का विचार है। लेकिन वर्तमान युगे पैसा का बल और ये बंदूक का बल से 8 पास 9 पास सीएम होने जाता है। ठीक है, तो उसका क्या ज्ञान है? शास्त्र में जग जग आचरित श्रेष्ठ स्तत्त देवी तरोजन सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत्व निवर्तते।
इस श्लोक का माने है जो श्रेष्ठ भक्ति होता है, हम सब लोग उनको फॉलो करते हैं और जो बोलता है हम वही करते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक चेतना संपूर्ण वो गाइडलाइंस देता है। जैसे ब्राह्मण का आप सब लोग क्यों पूजा करते हैं? ब्राह्मण ये शास्त्रों ज्ञान परिपूर्ण था। ब्राह्मण समाज को ज्ञान प्रदान करता है। ये जो वर्णाश्रम पद्धति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये कैसे सुंदर भावे परिचालित होगा, हाँ? ये सब ब्राह्मण ज्ञान प्रदान। लेकिन नेता ऐसे ही होना चाहिए जैसे परीक्षित महाराज, जैसे प्रहलाद महाराज, जैसे ध्रुव महाराज। ये आध्यात्मिक चेतना परिपूर्ण, इसलिए उससे परीक्षित महाराज का समय सब लोग सुखी था। परीक्षित महाराज का समय सब लोग भगवत भक्ति जजन जाजन। लेकिन भारतवर्षे এই যে নেতা, ভারতবর্ষে নেতাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি सब एक आध्यात्मिक चेतना धीरे 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 कमने लगा। और आध्यात्मिक चेतना कमने का बाद क्या हुआ ना, रजोगुण और तमोगुणের प्रकोप हुआ। सत्वगुणের प्रभाव नष्ट हो गया तो रजोगुण तमोगुणের प्रकोप। अब दार्जिलिंग जाइए, हर गली मौत का दुकान है, शराब का दुकान है या मांस का दुकान है। आप नहीं जा पाएंगे दार्जिलिंग, इतना गंध, माने हर गली हर मोड़ सब जाएगा मांस का दुकान। ये तमोगुण का प्रकाश है। तो धीरे धीरे एक कलिजुग धीरे धीरे ऐसे ही होगा। कलिजुग में ये पिता माता जो संपर्क ये संपर्क नहीं रहेगा, भाई बहन का जो संपर्क ये संपर्क नहीं रहेगा, ये स्त्री पुरुष का संपर्क नहीं रहेगा। ये पशु सुलभ आचरण, जिसका जितना बल शक्ति वही सब लोग को भोग करेगा, मारेगा, छीनेगा और सब छीन लेगा। ऐसे ही कलिजुग में, तो ये कलिजुग का प्रभाव है। लेकिन ये कलिजुग का विशेष एक दिक और विशेष एक शुभ जो इंगित है व सौभाग्य कारण हम सब लोग इस संदिक्षणे जन्म ग्रहण किया। एक कलिजुगे पहले जमाने में भगवान के लाभ करने के लिए तपस्या ध्यान ज्ञान यही तपस्या गुरुकुल ये बान पस्त सन्यास लेने को। इस कलिजुग में भगवान के संतुष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेवा। क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस से चैतन्य महाप्रभु ये क्या है? गोलोकीय प्रेम धाम लेके आया। गोलोकीय प्रेम जो ब्रह्मांड दुर्लभ प्रेम। प्रथम जो सृष्ट जीव कौन? ब्रह्मा सबसे बड़ा इंजीनियर। हम सब लोग जो आइंस्टाइन तारपरे क्या है न्यूटन और भी जो भी है ये सब विज्ञान बड़ा बड़ा विज्ञान, लेकिन ब्रह्मा बहुत बड़ा इंजीनियर है। ये सब जितना भी 84 लाख जीव जोनी का डिजाइन किया और डिजाइन करके किधर चोक रहेगा, कान रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, सब कुछ डिजाइन करके तो जाके सुष्ट स्वाभाविक हम सब लोग जीवन যাপন। কিন্তু এই যে দুর্লভ মনুষ্য জন্মে যে সুযোগ हम लाभ किया, आज সেই गुरुकुल जाने नहीं पड़ेगा। तपस्या वेद अध्ययन पुराण महाभारत रामायण इतना पढ़ने के लिए समय शक्ति और धैर्य स्थिरता नहीं है किसी को पास। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जीव कल्याणार्थे जीव को उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान होके भक्त रूप धारण करके, देखिए भक्त रूप धारण करके सिंपल कोई ना एक धोती का बस सिंपल और कीर्तन जे हे जीव एक कीर्तन लोग रूप मूल्य देके एक कीर्तन उद्धार लाभ, बस
यही कलिजुगের অবস্থা যে हम सब लोग भाग्यवान এই যুগ সন্ধিক্ষণ এই যুগ সন্ধিক্ষণে हम सब आया और এই চৈত্র মহাপ্রভুর যে কৃপা আশীর্বাদ লাভ করকে ভগবানের সন্তুষ্ট করকে প্রেম ভক্তি লাভ করকে ভগবানের দর্শন ভগবানের সেবা যুক্ত হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম রাম